So this is your maths textbook. Here it is. So you all know that there are two maths papers, maths paper 1 and maths paper 2. Okay. Today we are going to start with mathematics and statistics commerce part 1. जो मैथ्स का फर्स्ट पार्ट है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. ये आपका टेक्स्ट बुक है, आप सबके पास टेक्स्ट बुक भी होगी और नहीं होगा तो आपको पीडीएफ तो होगा ही आपके पास. ये आपका मैथ्स का टेक्स्ट बुक है. If I talk about the chapters which we have in maths 1, तो हमारे पास ऐसे टोटल 8 chapters है. Mathematical logic, matrices, differentiation, application of derivative, integration, definite integration, application of definite integration, differential equations. Okay, ये सारे chapters हैं. अब ये जो 8 chapters हैं, इसमें chapter number 3 से लेकर 8 chapter तक, chapter number 3 to chapter number 8, ये कनेक्टेड चैप्टर्स हैं. मतलब अगर आपने इसमें से बीच में से कोई भी एक चैप्टर नहीं पढ़ा तो उसके नीचे के चैप्टर्स आपको नहीं आएंगे. जैसे अगर आपने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा थर्ड, तो आपको 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी नहीं समझेगा. आपने थर्ड फोर्थ पढ़ा बट फिफ्थ नहीं पढ़ा तो 6, 7, 8 नहीं समझ में आएगा. ये सबके सब चैप्टर कनेक्टेड है एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. Okay, so 3rd to 8 are connected. We will be doing those chapters sequence wise only, 3rd, 4th, 5th and so on. But if I talk about 1st and 2nd chapter, they are independent topics. हम कोई भी उसमें से start कर सकते हैं. So to start with today's lecture, we will begin with 2nd chapter in maths 1, that is matrices. This is quite simple and easy chapter. So we'll start with that and then we will continue for the remaining chapters as well. Just to confirm, am I audible to everyone? You can raise your hands. There is an option of raising your hand. You can raise your hand to inform me whether you are able to listen to me or not. Okay, I am getting the hands now. Okay, 12 participants, 13. Very good. Okay, so thank you. So many of you are raising your hand and I can see that. So now let's begin with the chapter. Okay. Now, please don't write anything on the board. Okay, that is not for you. That is only for me. Okay, fine. So this is my notebook, and we are going to start with this chapter called as matrices. So, chapter matrices. The objective and the things which we are going to study in this chapter matrices, you can see here. Let's study. In that we have first as type of matrices. We are going to study that. Different types of matrices we are going to study. Then we are going to study algebra of matrices. Okay. Then properties of matrices, elementary transformation, inverse of a matrices, application of matrices, and determinant of the matrices. So this is our syllabus. These are the things which we are going to learn in this chapter. Okay. The weightage of this chapter in board exam is around 6 to 8 marks. So definitely out of 40, 6 to 8 marks मतलब बहुत होता है. तो हमको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है और बहुत ही इजी है, आपको अभी समझ में आएगा. So let's start with matrix. Okay, matrix and matrices are just singular and plural. Matrix is a singular word and matrices is a plural word of the same. तो सबसे पहले हम definition देखते हैं कि what is the definition of matrices. Okay, students. So if you look at here, definition: a rectangular arrangement of mn numbers in m rows and n columns enclosed in square bracket or open bracket, okay, is called as matrix of order m cross n. बहुत सारे लोगों को ये बड़े बड़े वर्ड्स नहीं समझे होंगे. डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन यू हियर. ओके, तो मैट्रिक्स क्या बोल रहे हैं हम लोग? मैट्रिक्स क्या होता है?
वो हम यहाँ पर देखते हैं। मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। व्हाट? इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे अगर मैंने यहां पर एक नंबर्स को अरेंज किया रेक्टेंगल के फॉर्मेट में, आप जरा ऑब्जर्व करो, 5 4 3 2 1 8। ओके, अब अगर आप ये जो मैंने अरेंजमेंट आपको लिखकर बताया है, इसके अंदर क्या मुझे कोई बता सकता है कि ये रेक्टेंगल के जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नंबर्स रेक्टेंगल के जैसे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? चैट बॉक्स का यूज कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैंड्स रेज करके हम नहीं बता पाएंगे। सो इवन इन चैट बॉक्स, यस सर, नो सर, वी कैन डू दैट। ओके, वेरेवर हैंड रेज जो पॉसिबल होगा वो हम लोग करेंगे। ओके, सो मेनी आर सेइंग यस, इट लुक्स लाइक अ रेक्टेंगल। हर्ष, आई डोंट नो व्हाई you are not agreeing that this is a rectangle. Definitely this is a rectangle, right? अगर ये कंप्लीट अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो ये रेक्टेंगल के जैसा ही दिखेगा ना। इसके लिए हम इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्मेट। तो व्हेन द नंबर्स आर अरेंज्ड इन रेक्टेंगुलर फॉर्मेट इनक्लोज्ड बाय या तो ऐसा वाला स्क्वायर ब्रैकेट या तो फिर ओपन ब्रैकेट, बट हमारा हैबिट ऐसा है कि हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज करेंगे। ठीक है, तो इस जो मैंने अभी यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल, इसको ही हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो अभी इस मैट्रिक्स में दो तीन चीजें और आपको समझनी है। हर एक मैट्रिक्स के अंदर रोज एंड कॉलम होते हैं। क्या होते हैं? रोज एंड कॉलम। अब ये क्या फंडा है रोज एंड कॉलम का? तो अगर ये मैट्रिक्स जो है इसको मैं नेम देता हूं, दिस इज मैट्रिक्स ए फॉर एग्जांपल। तो अगर इसमें मैं पूछूं आपको कि रो क्या होता है, तो रो का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। मतलब जो ऐसे ऐसे नंबर्स होते हैं ऐसे इस फॉर्म में, उसको हम रो बोलते हैं। और जैसे स्ट्रेट होता है उसको हम कॉलम बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको यहाँ पर पूछूं कि यहाँ पर कितने रोज हैं, तो आप आराम से बता सकते हो कि सर यहाँ पर दो रो है। एक ये रो है जिसके अंदर 5 4 3 है, और एक दूसरा रो है जिसके अंदर 2 1 8 है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स के अंदर मैंने ये देखा कि देयर आर 2 रोज। ये एक चीज मैंने नोट किया। अगर मैं पूछूं कि भाई कॉलम कितना है, तो कॉलम अगर ऑब्जर्व करूं तो ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकेंड कॉलम हो गया, और ये थर्ड कॉलम हो गया। isn't it? So the number of columns is equal to 3। तो अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का रो और कॉलम मालूम है तो आप एक चीज और बता सकते हो जिसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब ये ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है? तो जो मैट्रिक्स बनाने के बाद यहां पर नीचे हम ऐसा लिखते हैं 2 × 3, यहां पर कॉर्नर पे ये 2 × 3 जो है उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। वो ये बताता है, पहला नंबर ये बताता है कि उसमें कितने रोज हैं, और दूसरा नंबर ये बताता है कि वो उसके अंदर कितने कॉलम्स हैं। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जो 6 आएगा वो ये बताता है कि भाई इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। जहां तक सबको क्लियर है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, ये तीन चीजें क्लियर है? तो चैट बॉक्स में यस लिखिए आप लोग। वेरी गुड। ओके, ओके, fine. So everyone have understood how to write out the order of the matrix. So let's practice for some of the matrices. मैं यहाँ पर मैट्रिक्स लिख रहा हूँ और आपको मुझे ऑर्डर चैट बॉक्स में मुझे बताना है। ठीक है, चलो। आंसर फॉर बी, आप ऐसा लिखोगे आंसर में ऑर्डर, या डायरेक्टली आंसर लिख दो। चलो, वर्ड्स में लिखोगे तो आपको टाइप करने को टाइम लगेगा। ऑर्डर ऑफ बी। श्रुति, मुस्कान 4 4 बता रहे हो, ऑर्डर कभी 4 होता है क्या?
ऑर्डर आपको मुझे इस फॉर्मेट में बताना है, 2x3 या 2x3 या 2x4। मल्टीप्लाई करके नहीं बताना है, मल्टीप्लाई करके तो हम ये बताते हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं। ऑर्डर बताओ, ऑर्डर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम गेटिंग द आंसर्स। यस, तो इजीली वी कैन सी सर देयर आर 2 रोज, ये दोनों रो हो गए, और सर देयर आर 2 कॉलम्स। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2x2 है। वेरी गुड स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम फ्यू मोर मैट्रिक्स। Answer me for matrix C now. Answer me. सी ऑर्डर मतलब बहुत कुछ मत बताओ, 9 3, बस ऑर्डर मतलब 3x3, उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलने का। आपको पूछेंगे कि एलिमेंट्स कितने हैं, तो आपको बोलना है 9 एलिमेंट्स है। बट व्हेन आई एम आस्किंग यू ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इट इज सिंपली देयर आर 3 रो एंड 3 कॉलम। एब्सोल्युटली फाइन। नेक्स्ट वन मोर मैट्रिक्स। टेल मी अबाउट दिस मैट्रिक्स। What is the order of D? Think and tell me. Bilal, you must check. Sangeeta, check. Sahil, you also check. Okay. Now, students, there are many who are saying 1x1, 1x0. Okay, I'll explain. अगर मैं रो की बात करूं तो मैं देख सकता हूं कि यहां पर एक रो तो मुझे दिख रहा है, उसके बाद नीचे तो कोई रो है नहीं, यानी ऑर्डर में मैं 1 तो पक्का आ जाएगा यहां पर। अब मैं जब कॉलम को देखने जाऊं तो फर्स्ट कॉलम ये दिख रहा है, सेकेंड कॉलम ये दिख रहा है, और थर्ड कॉलम ये दिख रहा है। सो डोंट यू थिंक वी हैव 3 कॉलम्स? अब भले उस कॉलम में एक एलिमेंट है तो उससे क्या हुआ, बट हमको 3 कॉलम्स तो दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया क्या 1x3 ऑर्डर कैसे हुआ? हाँ, जिन्होंने गलती किया था, वेरी गुड। और एक मैट्रिक्स इसका ही भाई है, जरा उसको देख लेते हैं हम लोग। E इक्वल टू 5 9 2। चलो मैट्रिक्स ई का बताओ, मैट्रिक्स ई का बता दो जरा मुझे ऑर्डर जल्दी से। वेरी गुड साहिल मौर्य, प्रज्ञा वेरी गुड, प्रियंका गुड, बिलाल, इकरा, अमन वेरी गुड, श्रुति सिंह मस्ट चेक योर आंसर बेटा, सुचिता यू आल्सो शुड चेक योर आंसर, शिवम, शिवम इज राइट। बहुत सारे चैट्स आ रहे हैं इसलिए मैं सब रीड भी नहीं कर पा रहा हूँ। श्वेता, स्वेक्षा यू मस्ट चेक, प्रियंका गुप्ता यू मस्ट चेक। अब अगर मैं रोज बात करूं, रोज, तो रोज कितने देखो जरा, रोज मतलब हॉरिजॉन्टल, तो एक ये रो हो गया, एक यहां पर रो हो गया, और एक यहां पर रो हो गया। तो डोंट यू थिंक दैट देयर आर 3 रोज? तो पहला एलिमेंट तो रो होता है ना, तो 3 रो हो गया। और जब मैं कॉलम की बात करूंगा तो अब मेरे पास तो एक ही कॉलम है, स्टैंडिंग लाइन एक ही है, तो इसका मतलब कॉलम यहाँ पर 1 हो गया। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x1 हो गया। जिसने भी गलती किया था उन सबको समझ में आया क्या? श्रुति सिंह चेक करो बच्चा आपका, कहाँ 3 कॉलम है? 3 कॉलम मतलब ऐसा 2 3 ऐसा होना चाहिए स्टैंडिंग, राइट? प्लीज करेक्ट योरसेल्फ। एनीवन हु हैव नॉट अंडरस्टूड किसी भी एग्जांपल का तो मुझे पूछ लो अभी चैट बॉक्स में, जिसको नहीं समझा है वो रिप्लाई कर दो उसके अंदर। ओके, आई थिंक किसी का क्वेश्चन नहीं है, मतलब सब लोगों को समझ में आ गया है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। अभी हमने आपने देखा रहेगा जितने भी मैट्रिक्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये सारे के सारे मैट्रिक्स को मैंने कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट किया है। तो ये इसका एक रूल ही है कि कोई भी मैट्रिक्स जो होता है उसको हमेशा हम कैपिटल अल्फाबेट से ही लिखते हैं। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल एम, इस तरीके से हम लिख सकते हैं।
अभी हमको पढ़ना है कि मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसको कैसे डिनोट किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो वो कैसे करेंगे जरा यहां पर ध्यान से देखेंगे, प्लीज पे अटेंशन हियर ना। सपोज एक मैट्रिक्स है ए, एकदम ध्यान देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक मैट्रिक्स है ए और मैं बोलता हूं उसके अंदर उसका जो ऑर्डर है वो 3x2 है। अब 3x2 है तो उसको विजुअलाइज करो कैसा दिखता होगा वो। यस, उसके अंदर 3 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे। 3x2, राइट? कितने रो होंगे? 1 2 3, ऐसे 3 रो होंगे और कॉलम कितने होंगे? तो एक यहां पर होगा एक कॉलम और एक यहां पर होगा और फिर उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे, इजंट इट? तो हमको ना ये जो अंदर के एलिमेंट होंगे ना उसका पोजीशन फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखना, सपोज मैं यहाँ पर कोई नंबर लिख ही देता हूँ, यहाँ पर 2 है, 8 है, -1 है, 0 है, -2 है, -3 है। अगर कोई आपको ये मैट्रिक्स देता है, साक्षी पाठक, आपने क्या लिखा है? एबीसी ब्रैकेट में, उसका मीनिंग क्या है बच्चा? ओके, जाने दो। अब यहां पर देखते हैं, ये मैट्रिक्स ए है। अब हमको क्या करना है, इसके एलिमेंट्स के बारे में कुछ देखना है। ठीक है, अब ये क्या है? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो पहला एलिमेंट है 2, अगर आपको किसी को बताना है कि ये 2 इस मैट्रिक्स ए में कहां पर है, अगर आपको ये बताना है कि ये जो 2 है एलिमेंट वो मैट्रिक्स ए में कहां पर है, तो क्या बताओगे आप? सोचो जरा, वर्ड्स में, अगर नॉर्मल वर्डिंग में बताना है आपको, किसी जिसको मैट्रिक्स नहीं मालूम है उसको बस 2 का पोजीशन बताना है। इकरा, वेरी गुड। यस, तो जैसे इकरा ने यहां पर लिखा है आंसर में कि 2 का जो पोजीशन होगा सर वो होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। डू यू ऑल एग्री दैट? यस, जो नंबर 2 है वो फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, इसलिए हम इसको इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं जैसा मैं अब यहाँ पर लिखने जा रहा हूं। कैपिटल ए हमारा अल्फाबेट था फॉर मैट्रिक्स, तो उसके एलिमेंट्स को हम स्मॉल ए से लिखेंगे, तो मैं लिखूंगा स्मॉल ए, बट उसके नीचे मैं यहां पर लिखूंगा 1 1। तो A11 का मतलब है ये वो एलिमेंट है जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। ऐसी अगर मैं आपको पूछूं कि 8 का पोजीशन क्या है, तो आप क्या बताओगे? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 8 स्टूडेंट्स? तो यू कैन सी हियर 8 is in the first row but now in the second column. So इसका एलिमेंट हो जाएगा A12। yes, very good. Similarly -1 का क्या होगा बच्चों? -1 का क्या होगा? -1, यस, तो -1 जो है वो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो उसका सिंबल हो जाएगा A21। 0 का क्या होगा बच्चों? 0 का, very good, A22, second row second column, and like that for -2 it will be A31, third row first column, and for -3 it will be A32, that is third row second column. Have you all understood how to write down the symbol? Is it clear everyone? Very good. Okay, okay, that's good. इसी जो मैंने मैट्रिक्स को लिखा है ना, A11 A12, अब ये तो डिपेंड करता है उसके अंदर कितने रो है कितने कॉलम है, उस हिसाब से ये हमको बनाना है। इसको कभी कभी शॉर्ट में ऐसा भी लिखते हैं, ध्यान से देखो, इसी पूरे मैट्रिक्स को जो ये मैंने लिखा है ना, इसको शॉर्ट में ऐसा भी लिखते हैं, ब्रैकेट लिखते हैं स्मॉल ए, और 1 2 1 3 ये सब की जगह AIJ लिखते हैं, और यहाँ पर उसका ऑर्डर लिखते हैं 3x2। तो इसका भी मतलब वही है कि 3 रो और 2 कॉलम का ये मैट्रिक्स है और उसके एलिमेंट्स AIJ के जैसे दिखते हैं। आईजे मतलब जो वहां पर सफिक्स आएगा वो 1 1 1 2
2 1 2 2 जैसा हमने यहाँ पर किया था। ओके, नाउ ये जो अभी हमने सीखा है, इस बेस पर हम लोग अपने मैट्राइसेस का पहला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब वो क्या है जरा हम देखते हैं पहले टेक्स्ट बुक में। आपके सामने एक्सरसाइज 2.1 है और उसके अंदर पहला क्वेश्चन आप देखोगे क्या लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 2 जिसके एलिमेंट्स कैसे हैं, एआईजे के जैसे हैं, उसमें 3 रो है और 2 कॉलम है। whose elements aij is given by, aij का अलग अलग डेफिनेशन दिया है। हाँ, टेंशन मत लो, 2 मार्क का ये सम आता है, 100% आएगा एग्जाम में। कैसे करना है यहाँ पर हम देखते हैं अभी इसको। तो सबसे पहले तो मुझे aij लिखा है तो वो लिखना पड़ेगा, मैं यहीं पर इसके यहाँ पर करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ये 2.1 का। सो दे हैव टोल्ड दैट देयर इज अ मैट्रिक्स A जिसके अंदर aij है, उसके अंदर 3 रो और 2 कॉलम है। तो पहले तो मुझे एक मैट्रिक्स बनाना है जिसके अंदर 3 रो और 2 कॉलम होंगे, तो जो कि ऑलरेडी हमने सीखा है 3 रो और 2 कॉलम कैसे बनाना है। तो स्टार्ट होगा A11 से पहला, फिर A12, फिर A13, बट 13 नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि थर्ड कॉलम नहीं है, 2 ही कॉलम है यहाँ पर, तो 12 पे स्टॉप हो जाएगा। अब मैं सेकेंड रो में आऊंगा, तो A21, फिर A22, फिर थर्ड रो में आऊंगा, A31, A32। इस तरीके से हमने इस पूरे मैट्रिक्स को सिंबल के फॉर्म में बना दिया। ओके, अब इसके बाद हमको क्या करना है, A11, A12, A21, A22, A31 और A32 इनकी वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे, तो जैसे अभी हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट कर रहे हैं ना, तो उसमें AIJ का क्या लिखा है वो देखना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर क्या लिखा है AIJ, जरा देखो, AIJ इज I माइनस जे का होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस आई। तो मैं यहाँ पर इसके नीचे पहले उस AIJ का वैल्यू लिखूंगा कि AIJ इज गिवन एज I माइनस जे का होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस आई। अब देखो ये AIJ का डेफिनेशन दे दिया है, अब मैं एक एक करके सबका वैल्यू फाइंड करूंगा। अभी जैसे मैं अगर बोलूं कि A11 क्या होगा, तो बस I की जगह 1 और J की जगह 1 लिखना है, तो ये होगा 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस आई, आई होता है 1, 1 माइनस 1 0, और 0 का स्क्वायर 0 होता है, 5 माइनस 1 4 होता है, बट 0 डिवाइड बाई एनीथिंग 0 हो जाता है। तो A11 का आंसर आ गया। इसी तरीके से हम A12 निकालेंगे, तो A12 क्या होगा, तो I1 है J2 है, तो I1 J2 होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस आई, आई है 1। ठीक है बच्चों, अब 1 माइनस 2 होता है -1, तो ये -1 का स्क्वायर हो गया, और नीचे आएगा 5 माइनस 1 4। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 और 5 माइनस 1 4 एज इट इज हो जाएगा। तो A12 1/4 हो गया। इस तरीके से हम सब फाइंड करेंगे। अब ये जो मैंने कैलकुलेशन लिखा है, ये आपको जरूरी नहीं है कि नोटबुक पे दिखाना है, आप इसको ओरली भी कर सकते हो, आप रफ में करके भी डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। मैंने आपको यहाँ पर सैंपल बताया कि इसको कैसे करना होता है। हाँ, तो चलो मैंने 2 बता दिया, A11, A12, मैं उसको जरा लिख लेता हूँ यहाँ पर। मेरा जो मैट्रिक्स A है उसका A11 की जगह आया है 0 और यहाँ पर आया है 1/4। कोई मुझे बताएगा, आप लोग ट्राई करो, A21 क्या होगा। A21 देखो यहाँ पर डेफिनेशन, A21 I की जगह 2 और J की जगह 1 पुट करो और सॉल्व करो AIJ में। 2 1, मुस्कान, गायत्री, प्लीज चेक योर आंसर बच्चा। 2 1 नीचे I पुट करना है, J नहीं, तो 2 1 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1, ऊपर 1 का स्क्वायर 1 होगा, और नीचे 5 माइनस आई, आई तो 2 है ना, तो 5 माइनस 2 3 होगा, यानी सबको मिलना चाहिए 1/3, 1/3।
यस, 2/9 कैसे मिल रहा है बच्चों? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। चलो 2 बता दो, चलो 2 चलो 2 बताओ। A 2 जीरो होगा, क्यों? क्योंकि सर 2 - 2 ऊपर ही जीरो हो जा रहा है, तो वो तो जीरो ही होगा। वेरी गुड। चलो 3 1 बताओ, 3 1, 3 1 बताओ, 3 1। यस, 4 ऊपर 4 नीचे 2 आता रहेगा, 4/2 आता रहेगा, दैट इज 2। यशिरा जरा चेक करो बच्चा, ऊपर 4 आएगा ना, स्क्वायर करना है, तो 3 - 1 2 होगा, बट फिर 2 का स्क्वायर तो 4 होगा ना। ओके, तो वो 2 आ गया। और 3 2 लास्ट में बता दो, चलो 3 2। तो ये 0 है, ये 2 है, 3 2 क्या होगा? तो 3 - 2 1, 1 का स्क्वायर 1, और 5 - 3 2। तो आई थिंक दिस विल कम्स आउट टू बी 1/2। हो गया आपका आंसर। श्रुति कैसा आएगा बच्चा? 3, हाँ 1/2। ओके, हैव यू ऑल अंडरस्टूड हाउ टू कंस्ट्रक्ट? नो प्रॉब्लम श्रुति। हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिसेस जब ए आई जे दिया रहेगा तो हमको। वेरी गुड। चलो अभी आपने अगर बोल दिया आपको आता है, तो हम सेकेंड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। आप लोग नोटबुक में ये सब लिख रहे हो ना बच्चा, साथ में? हाँ, मेरे साथ साथ लिखना है आपको। नोटबुक पेन हमेशा रेडी होनी चाहिए आपकी। जैसे जैसे हम सम करेंगे वैसे वैसे हमको लिखना है। अभी देखो सेकंड जो क्वेश्चन है, उसके अंदर भी मैट्रिक्स तो वही है, ए आई जे 3 × 2, बस डेफिनेशन ए आई जे का चेंज हो गया है। तो कैन यू ऑल स्टार्ट? पहला 2 स्टेप सेम होगा, ए वही होगा, ये भी वही होगा, बस ये वाला डेफिनेशन चेंज हो जाएगा, और फिर हम अलग आंसर निकालेंगे। तो स्टार्ट करेंगे सब लोग, मुझे डायरेक्ट आंसर बताएंगे सेकेंड वाले का, ए आई जे I - 3j। स्टार्ट डूइंग इट एवरीवन। ऐसे मत बताओ मुझे, एक एक एलिमेंट का आंसर मत टाइप करो, आप पूरा सॉल्व करो, फिर मुझे रो वाइज डालो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ऐसा 3 रो है ना इसके अंदर, डायरेक्ट उस तरीके से आंसर लिखो। क्योंकि यहाँ पर चैट बॉक्स इतने सारे हैं कि सब ऊपर चले जा रहे हैं, इतने लोग रिप्लाई कर रहे हैं। तो आप क्या करो, आप पहले पूरा सॉल्व कर लो, जब मैट्रिक्स बन जाएगा तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ऐसा आंसर मुझे बता दो। अच्छा बच्चों, इन केस लेक्चर बीच में अगर स्टॉप हो जाता है ना, क्योंकि ये 40 मिनट्स का लेक्चर शेड्यूल है, इन केस इफ इट स्टॉप्स इन बिटवीन 40 मिनट्स, डोंट वरी, हम लोग समझ लेंगे कि ये लेक्चर आज का यहीं पर कंप्लीट हो गया है। फिर नेक्स्ट लेक्चर जब हमारा होगा तो उसके अंदर मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है? तो वापस से ज्वाइन मत करना इस लेक्चर के लिए, फिर डायरेक्टली आप 2 o'clock को आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके लिए आप ज्वाइन करना। ओके? हाँ, चलो आंसर दे दो मुझे जरा। सेकंड का बहुत ही सिंपल है आई थिंक ये तो। वेरी गुड, आई गॉट द आंसर फ्रॉम स्वेक्षा, संगीता। गुड गुड। I'll just write down the answer here itself. फर्स्ट रो आया है बच्चों को -2 -5। सेकेंड रो में थोड़ा कंफ्यूजन है। हाँ देख लो बाबा, जिसका +1 आया है, अल्फिया बच्चा देखो जरा, आपका -1 -4 मेजोरिटी लोगों का आंसर है। मैं करके नहीं देख रहा हूँ, हाथ के भरोसे में लिख रहा हूँ। हाँ
एंड आई थिंक थर्ड में ये सेल्फ ईयर, राइट, 0 - 3 है शायद, प्लीज चेक कर लो। मैंने मेजोरिटी के अकॉर्डिंगली आंसर लिखा है, बट कभी कभी हो सकता है मेजोरिटी सेम मिस्टेक करेंगे तो रॉन्ग भी आ सकता है। ओके, सो प्लीज देख लो, ये सबका आंसर आना चाहिए। आई थिंक सबके आंसर्स यही है, सो दिस इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। So why don't you try the third one also now? Aij, same way. Start the third one. I plus j the whole cube लिखा है, I plus j the whole cube। तो ध्यान से आप करना, ये तो बहुत ही सिंपल है, ओरली हम बता सकते हैं यहीं पर। 1 1 जब होगा तो 1 + 1 होगा 2, 2 का क्यूब 8, तो 8/5 आ जाएगा, क्योंकि नीचे तो 5 फिक्स है। फिर 1 2, तो 1 + 2 3, 3 का क्यूब 27, तो 27/5 आएगा। नेक्स्ट इज 2 1, तो 2 1 मतलब 2 + 1 3, तो वापस से 27/5 आएगा। 2 2, 2 + 2 4, 4 का क्यूब 64, तो 64/5 आ जाएगा। फिर यहाँ पर भी 3 + 1 4 होता है, तो 64/5, एंड यहाँ पर 125/5 आएगा। दिस शुड बी द आंसर, आई थिंक। यस। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं इसके अंदर, सब में से 1/5 कॉमन ले सकते हैं। तनिष्क, आप सॉल्व करो बच्चा थर्ड प्रॉब्लम, यू कैन डू इट, इट्स क्वाइट इजी। हाँ, 1 1, तो वह आई और जे की जगह 1 1 लिख दो। तो देखो 1 + 1 2 होगा, और 2 का क्यूब 8 होगा ना। देखो यहाँ पर एक एक करके आपको सब्स्टिट्यूट करना है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। द वन विच विल बी डिफिकल्ट आई विल बी डेफिनेटली सॉल्विंग इट, डोंट वरी, बट दिस इज क्वाइट इजी, you try now. If you would have done first and second, you will understand the third one also, right? एंड फाइनली हम क्या कर सकते हैं, 1/5 सब में से कॉमन ले लेंगे और फिर लिख देंगे। 8 आएगा, 27 आएगा, फिर इधर 27, यहाँ 64, 64 125, ऐसे मैट्रिक्स में कॉमन ले सकते हैं हम लोग। यस, नॉट 5 कॉमन, 1/5 कॉमन, राइट। सब में अपॉन 5 है ना, तो 1/5 कॉमन लेना है। ओके तनिष, आई थॉट टोल्ड यू ना, इट्स क्वाइट इजी, यू कैन गेट दैट। I hope everyone have done with this. I'll just rub this, बहुत ज्यादा गंदा हो गया। बहुत ही सिंपल ये सम था, क्वेश्चन नंबर 1 that we have completed. Okay, now we'll continue with the theory part. वापस टेक्स्ट बुक पे आ जाते हैं, फर्स्ट पेज। So till now we have understood what is the definition of matrices, then उसके symbols क्या होते हैं, मैट्रिक्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इसके बाद अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज हमको सीखनी है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स के कितने सारे टाइप्स होते हैं वो सीखने वाले हैं। अभी आपको कुछ लिखना नहीं है, आगे की जो भी बातें वो आपको बस समझनी है, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक में है, तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, दैट्स ऑल। अभी जो फर्स्ट डेफिनेशन है, फर्स्ट जो हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के अंदर, वो है रो मैट्रिसेस। देखो जरा रो मैट्रिसेस। ओके, फर्स्ट इज रो मैट्रिसेस। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, एक बच्चे को मैं अनम्यूट करता हूँ, वो बच्चा यहाँ पर देखकर इसको रीड करेगा। तो आई थिंक यशिरा, आर यू देयर यशिरा? मैं आपको अनम्यूट करता हूँ बच्चा, आप अनम्यूट को प्रेस करना, आपकी आवाज यहाँ पर आएगी। यशिरा प्लीज, हेलो यशिरा। Yes, sir. Okay, hi, how are you? I'm fine. Okay, you can see this board, right? Can you read the definition of row matrix? Yes, sir. Yeah. A matrix that has only one row is called a row matrix. It is order one. One is 1 into n 1 into n, where n is greater than equal to 1. greater than Very 1. good. Okay, just hold on. What Yashira had said, what is row matrix? A matrix that has only one row. Very important. अगर किसी मैट्रिक्स में बस एक ही रो है
तो हम उसको क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देखो जरा यहाँ पर, इस एग्जाम्पल को देखो तो क्या दिखता है आपको, देर इज ओनली वन रो बट वी हैव टू कॉलम्स, राइट, वन रो एंड टू कॉलम। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा ना, ये 2 कॉलम हो गए। अगर सेकेंड रो, सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, देन देयर इज वन रो एंड 3 कॉलम्स। Isn't it, students? All of you, please reply in the chat box. Are you understanding? ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल में 1 रो है और 3 कॉलम्स है, 1 रो है और 2 कॉलम्स है। सो व्हेन वी हैव एग्जैक्टली 1 रो, कॉलम्स कितने भी रहने दो, अगर 1 रो है तो हम उसको क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। और उसका ऑर्डर कैसा होगा, डेफिनेटली उसका ऑर्डर 1 क्रॉस n के जैसा दिखेगा ना, क्योंकि रो तो फिक्स है 1, अब कॉलम डिपेंड करता है, अगर 2 कॉलम है तो 2 रहेगा, 3 कॉलम है तो 3 रहेगा, 4 कॉलम है तो 4 रहेगा, isn't it? तो वो कॉलम क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कॉलम क्या होगा, 1 और 1 से ग्रेटर होगा ना, ये भी हो सकता है 1 1 1 2 1 3 1 4, ऐसा हो सकता है। I hope everyone have understood raw matrix, right? Let's read the column matrix now. Yashira, please read the column matrix, first line. A matrix that has only one column is called as column matrix. It is of order m cross 1, where is m greater than 1. Very good. So it is exactly same as row matrix. In row matrix we have only one row, here we have only one column. So if we have only one column, we call them as a column matrix. इसका मतलब इसका कॉलम फिक्स है, इसके लिए आप देखो जरा इसके ऑर्डर में, कॉलम में 1 लिखा है और रो मालूम नहीं है ना, क्योंकि रो कितना भी हो सकता है। एग्जांपल्स देख लो यहाँ पर आप, ये एग्जांपल देखो, 1 कॉलम है बट देयर आर 2 रो। सेकेंड एग्जांपल में 3 रो है बट कॉलम एक ही है। सो व्हेन वी हैव एग्जैक्टली 1 कॉलम, वी कॉल इट एज अ कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड, जीरो और नल मैट्रिक्स। यशिरा, प्लीज रीड दिस वन आल्सो। What, sir? What definition, please read. Okay, a matrix is which every element is zero is called a zero or null matrix. It Very is important. denoted by Every zero. element is zero. यहाँ पर ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का होगा, बट अगर सारे एलिमेंट्स, कैन यू सी दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स जीरो है। So when a matrix has all the elements equal to 0, it is called as null matrix and it is denoted by capital O. And the last definition for today is a square matrix. Please read the square matrix, Yashira. A matrix with the number of rows equal to the number of columns is called a square matrix. If a square matrix is of order n square, and then n is called the order of the square matrix. No problem. Square matrix means when the number of rows is equal to number of columns. अभी यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में डोंट यू थिंक देयर आर 3 रो 3 कॉलम। मैं अगर एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ 1 2 3 4, इसका ऑर्डर क्या है, तो 2 क्रॉस 2 है। अगर एक ही एलिमेंट है 5, तो इसका ऑर्डर क्या है, 1 क्रॉस 1 है। सो व्हेन नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, देन वी कॉल दैट एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और उसका ऑर्डर होगा n क्रॉस n, सेम ही होगा ना, n क्रॉस n। yes, everyone understood these 4 types of square matrix? Yashira, Yes, you sir. can mute yourself now. Thank you so much, Yashira. Thank you, sir. Everyone understood what is this row matrix, then column matrix, zero matrix, or a square matrix? Everyone understood? Is there anyone who want a repeat telecast of these 4 types of matrices? Okay, I think everyone understood. There's a student, I think Aryan. Huh? We have time. Aryan, I'll unmute yourself. Please explain me the types of matrices now. Aryan, please unmute. Hello Aryan, can you unmute yourself? आपको आता रहेगा, unmute now. आर्यन E629, दो आर्यन हैं। चलो आर्यन नहीं कर रहा अनम्यूट, लग रहा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर चलो श्रुति सिंह, प्लीज अनम्यूट करो बच्चा। श्रुति सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, sir. हाय श्रुति।
Hello, sir. Yeah. Tell me row matrix in one line. Row matrix का मतलब क्या होता है? There's only one row in In a in matrix. Simple. If Hmm. a matrix has only one row, Only it is one called as row. row matrix. Row Repeat. matrix. Repeat. A matrix which has only one row is called as row matrix. What is column matrix? Same way, a matrix has one and only one column is called as column matrix. Repeat. Column matrix. A matrix which has only one column is called as column matrix. Okay. What is zero or null matrix? A matrix which has element 0. A matrix in which all the elements are zero. Please repeat again. A matrix in which all the elements are 0 is Okay. called as zero or null matrix. Absolutely fine. And what about square matrix? A matrix in which there are equal number of rows and columns are called as square matrix. Very good. Very good. Excellent. Please, you can just unmute yourself back. Yes. Thank you. So students, you all have understood what are the four types of matrices, how to construct the matrices. Yes, I think everyone have understood this. So for today, we will stop for here. I hope you all have enjoyed today's lecture and you have really learned something from this lecture. Yes. So thank you very much, students.